ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਉਦੇ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਟੈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ CLB7 ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਓਕੇ, salut. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Okay, so what's your level in French? Currently my level is C1. C1, okay. तो आप कुछ फ्रेंच में बोल के बता सकते हो 3-4 लाइनें? Présentez-vous. Bien sûr. C'est un petit peu gênant de présenter comme ça devant 2 ou 3 personnes, mais je vais quand même essayer. Bonjour tout le monde, namaste, sat shri akal. Je m'appelle Uday Wadhwa, j'ai 22 ans en total maintenant. Et l'année dernière, j'étais en France pour habiter à Saint-Malo. C'est un petit village de pêcheurs à la côte nord de le pays. Et oui, j'étais là pour apprendre la culture et la tradition et partager là ici avec Learn French with Herman maintenant. Okay, merci. Okay, so तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पंजाबी में, राइट, जैसे और इंग्लिश में, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना आए समझने में, राइट? ठीक है, अब हम बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? आप फ्रेंच सिटी या फ्रेंच कंट्री में आपने कोई विजिट करी है? So yes, what I just told in French, तो यही था जिन लोगों को शायद अभी नहीं आती, जो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, तो मैंने बस इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट और हिंदी में करते यही था कि पिछले साल आई वॉज इन फ्रांस, इन ब्रेटाइन, इट्स इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, नॉर्थ कोस्ट ऑफ फ्रांस. There was a very beautiful village over there by the name of Saint Malo. It's a little pirates town, let's say. And yeah, I was there teaching English to French kids and working there. So I lived there for around one year in all. Recently आपने भी तो फ्रांस विजिट किया था. You can also share some. हाँ, मैंने पेरिस विजिट करा था और वो पोलिये में वहाँ पे गया हूँ, और मैंने साउथ ऑफ फ्रांस भी गया हूँ. सो अच्छा है वहाँ पे, कल्चर काफ़ी अच्छा है. लाइक आप जब भी किसी के साथ जाते हो, फ्रेंच में बात करते हो, देन डेफिनेटली यू फील के वो अपना बनाता है वहाँ पे. They welcome you. ठीक है, हाँ. बट अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, देन आपको पता है कि वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, राइट? फिर कोई अपनापन नहीं आएगा, देन दे विल ट्रीट यू लाइक थोड़ा रूड हो सकता है और कुछ लोगों को लगता है, बट एक बार यू स्टार्ट स्पीकिंग फ्रेंच, इट बिकम्स ईजियर. हाँ, मतलब आपको फ्रेंच इतनी आनी चाहिए कि आप किसी के साथ भी वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाओ. तो Coucou, comment ça va? ça va très bien et vous? Oui, ça va bien. Je voudrais poser une question pour toi. Allez, avec plaisir. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans le week-end? Le week-end, souvent je suis chez moi, je travaille. I must say, अगर कोई भी पर्सन फ्रांस जा रहा है या किसी भी फ्रेंच कंट्री या सिटी में जा रहा है, डेफिनेटली उस पर्सन को उतनी फ्रेंच आनी चाहिए कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके. Exactly. If you are living in Punjab, तो people expect you to know Punjabi. It just makes things easier. ऐसा नहीं है कि if you would not speak Punjabi, people would kick you out. But एक हल्का सा लेवल आपको आना चाहिए. Same with French. You should not be proficient बिल्कुल एकदम से. But people expect कि थोड़ा तो बोलो, एटलीस्ट एफर्ट करो. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. सो उधर हम बात करते हैं हम टेफ मॉड्यूल्स की, ठीक है? तो टेफ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जैसे आप रीडिंग और लिसनिंग देखते हो मेनली, राइट? तो उसमें आप मुझे बताओ कि क्या पैटर्न है. बेसिकली जैसे वी वर्क हियर एट द इंस्टीट्यूट, it's basically that I specialize in reading and listening, but there are other teachers who are qualified as much as I am for other modules, writing and speaking as well. But I'll just talk about my niche, my specification for now. So that is कि I work on listening and reading, and for that we do everything from listening to interviews, podcasts, real life French, and उसके बाद exam based specifically modules का test होता है, sample papers होते हैं, activities होती है, games होती है कि you feel comfortable with the language. It's not like a pressure on your mind, but आपको you are at ease with it. Okay, ठीक है. तो जैसे आप प्रिपरेशन करवाते हो, क्या आप ऐसी टिप्स देते हो स्टूडेंट्स को और उनको हेल्प करते हो कि उनका जो रीडिंग और लिसनिंग है वो अचीव हो जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम यहाँ करते हैं, वी प्रोवाइड देम विद ऑल द रिसोर्सेज वी हैव, द लेटेस्ट बुक्स, द लेटेस्ट यूट्यूब लिंक्स, द लेटेस्ट वेयरएवर वी फाइंड थिंग्स. आजकल तो AI से भी यू कैन हेल्प योरसेल्फ अ लॉट. तो वी गाइड देम इन अ बेटर वे. उसके अलावा ओवर टाइम व्हेन यू आर टीचिंग टेफ, यू गेट टू नो दैट पैटर्न के अंदर कि ठीक है, ऑडियोज के एंड में देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू लिसन. कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोन इन द एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो आप क्लास में आओगे, आई कैन एक्सप्लेन यू, गाइड यू बेटर इवेंचुअली. ओके,
सो बेसिकली क्या जाता है कि जो फ्रेंच की लिसनिंग है ना वो बहुत डिफिकल्ट है. जैसे अभी आपका लेवल C1 है राइट, तो C1 लेवल तक आते आते आप मुझे ये बताओ कि आपने कितनी उसको प्रिपरेशन खुद से करी थी, आपको कितना टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, और आप स्टूडेंट्स को कैसे रेकमेंड करते हो कि वो अपनी जो लिसनिंग है वो स्किल्स इंप्रूव कर ले? देखो, honestly speaking, my journey with French it started in the COVID. I started learning online and then but basic जितना मेरा improvement हुआ, that was when I went to France. When you interact with people over there, you are in that environment. आपको you're forcefully like said to speak French. It's like the norm over there. ये तो चीज मैंने भी देखी. जब मैं भी फ्रांस में गया था वहाँ पे भी ऐसे था कि जब आप वहाँ पे कल्चर को वैसे देखने लग जाते हो, उस चीज को आप फ्रेंच बोलते हो, डेफिनेटली आपको भी वो चीजें अंदर से फ्रेंच निकलती है. नॉर्मली पंजाब में रहते हैं राइट, आप पंजाबी बोलते हैं राइट, अंदरों पंजाबी निकलती है. ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ है, वो ਆਪਾਂ प्रैक्टिस कर पाते हैं राइट. सो लिसनिंग में आप स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करते हैं कि वो अपनी लिसनिंग कैसे इंप्रूव करें? लिसनिंग में what I would say is that we have all our media devices. आजकल we use phone 24/7, we use laptops 24/7. जो बेसिक सबसे आप फंडामेंटल लेवल पे बदल सकते हैं, दैट इज द लैंग्वेजेस ऑफ योर डिवाइस, कि माइंड मसल मेमोरी बन जाए कि दिस थिंग इज कॉल्ड दिस थिंग इज कॉल्ड दिस. उसके बाद यू रीड न्यूज़ एवरी डे, यू आर स्विच्ड योर फोन इन फ्रेंच, योर आर्टिकल्स वुड इवेंचुअली बी इन ईजी फ्रेंच. सो बेसिकली लिसनिंग के अंदर आई वुड से देयर इज नो शॉर्टकट्स टू लैंग्वेज लर्निंग पर से. यू हैव टू लिसन टू अ सिंगल ऑडियो बहुत बारी, चाहे 10 सेकंड के हो, 5 सेकंड के, आपको एक वर्ड नहीं समझ आ रहा, यू ओपन द ट्रांसक्रिप्ट, यू लुक एट द सबटाइटल्स, आप उसको सर्च करिए इंटरनेट पे. सो दैट इज द ओनली वे. ऐसा तो नहीं है कोई एकदम से जादू हो जाएगा एंड यू आर लाइक अरे सब समझ आ रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो एग्जाम में से एमसीक्यू में स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट होते हैं. तो जैसे एग्जाम में आपने बताया 40 क्वेश्चंस हैं राइट, 40 में से हमें 29 चाहिए राइट B2+ के लिए. Exactly. तो हम रीडिंग में भी ऐसे है, राइटिंग लिसनिंग में भी ऐसे है राइट. तो उसमें से स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में दिक्कत आती है, तो वो आप कैसे उनको सॉल्व करते हो, मतलब हेल्प करते हो उस चीज में? देखिए, सबसे पहला तो होता है लैंग्वेज का डर निकालना. नाउ इफ यू आर स्केर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इवेंचुअली काफी बच्चे होते हैं यू कांट डू मैथ्स, तो सबसे पहले उस डर को निकाल के साइड पे रख के जस्ट वी आर लाइक चिल्ड्रन इन दिस लैंग्वेज. मतलब इफ यू आर लर्निंग एनी न्यू स्किल, लेट्स से गिटार और कोडिंग, आप बिल्कुल बच्चों की तरह यूज करें कि ये ई कॉर्ड होती है, ये ए मेजर होती है, ये कुछ होता है. वैसी लैंग्वेज के साथ भी यू नीड टू पुट योर ईगो असाइड कि मैं सीधा ही ये सारा समझ जाऊंगा, बट स्टार्ट लेवल बाय लेवल, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एंड इवेंचुअली कंसिस्टेंसी के साथ ही यू कैन रीच अ वेरी गुड लेवल. ओके ठीक है. तो जैसे बच्चे कहते हैं कि मुझे टेफ एग्जाम में CLB 7 लेके आना है, पर मैं लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना चाहती या करना चाहता हूँ राइट, बस सीधा ही मैं टेफ की तैयारी करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल. जैसा आपने ऑलरेडी कहा है कि CLB 7 इज अ B2+ लेवल. अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर मेरे को इतने साल लगे, आपको खुद इतने साल लगे, तो यू कैन नॉट से कि 5-6 महीने में कि वी आर देयर. यू हैव टू पुट इन टाइम. बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं मार्केट में जो बोलते हैं कि 4 से 5 महीने में हम आपको फ्रेंच करवा देंगे और आपको एग्जाम भी क्लियर करवा देंगे और आपका टैप का CLB 7 भी आ जाएगा. तो उसके बारे में क्या है? आई डोंट बिलीव इट पर्सनली. शायद कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा पोशन हो, कोई ऐसा सिरप हो जो आपको पिलाए और आपका यू बिकम जीनियसेस विद 165 IQs. Okay. बट frankly it's not possible on a human कोई level. शॉर्टकट नहीं है. कोई शॉर्टकट नहीं है. And if you have to speak it, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है वो तो आप RD शर्मा पढ़ के चल जाइए, मैथ्स क्लियर हो जाएगी. बट इफ यू नीड टू delve deeper into concepts, communicate, which is your long term goal. मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 1 साल का प्रोसेस है ये. Easy. 1 साल का प्रोसेस है. अगर आपने स्टार्टिंग से CLB 7 तक जाना है, तो अगर कोई फास्ट भी करे तो वो कह सकते हैं कि हम 8-9 महीने में कर ले, बट उससे कम में करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क. वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए CLB 5 लेके आना वो हो जाएगा 4-5-6 महीने में, क्योंकि CLB 5 वो टास्क थोड़ा छोटा टास्क है. बट CLB 7 की जब बात आती है, मेरा बिलीव ये है कि 1 साल तक का प्रोसेस है राइट. अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपने फ्रेंच करी थी तो आपको क्या मोटिवेशन आई कि C1 तक आप पहुंच गए, और आप स्टूडेंट्स को भी वो चीज़ कैसे बता सकते हो कि वो उनको भी ये मोटिवेशन आए, कोई शॉर्टकट नहीं लेना और डेफिनेटली C1 लेवल तक पहुंचना है? क्या आपने पेशेंस रखें और कैसे, आप मुझे प्लीज बताओ इसके बारे में. देखो, कंटिन्यूइंग विद योर पॉइंट ओनली कि B1 तक पहुंचना इज वेरी इजी. इट्स नॉट लेट्स से अ वेरी हार्ड टास्क. बट B1 से जो B2+ की जंप है, दैट इज लाइक एक खाई है बीच में. अगर आप वो जंप कर गए, आपने वो गोलमाल मूवी देखी है ना, वो पहले फेंकता है पत्थर फेंकता है, वो फिर खाई बढ़ती ही रहती है अगर आप कंसिस्टेंट ना रहे. तो जो मैंने पर्सनली अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए चीज़ें यूज़ करी, दैट इज़ अगर आप प्रेशर लेके दिमाग पे करोगे कि मेरे को CLB 7 चाहिए,
कीप इट एज अ पार्ट बट लुक एट इट इन अ होलिस्टिक वे कि मैं इससे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं फ्रेंच लोगों से बात करना चाहता हूँ, मेरे को मल्टीलिंगुअल जॉब्स चाहिए, तो जस्ट डोंट प्रेशराइज अ लॉट। तो हमारी टीम में जैसे उदय सर है, मेनली ये रीडिंग और लिसनिंग में डील करते हैं, वैसे ही हमारी टीम में एक मैम है, ठीक है, और वो राइटिंग में डील करते हैं। सो हमारे पास नेटिव फ्रेंच ट्रेनर जो है वो स्पीकिंग में डील करते हैं। तो हर मॉड्यूल में हमने क्या करा हुआ, लाइव सेशंस रखे हुए हैं जिनमें टीचर्स क्या करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग सेशंस देते हैं और प्रॉपर लाइव सेशंस होते हैं और इनके टेस्ट भी होते हैं और सैम्पल पेपर्स देते हैं और एक्स्ट्रा सोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे प्रेप माई फ्यूचर हो गया और टेफ की जो बुक्स है वो भी यूज़ करते हैं। और मेनली ये वीडियो का मकसद यही था कि आपको पता चले कि जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनका क्या लेवल है और वो कैसे आपको हेल्प करेंगे, और ताकि आप अपना जो CLP 7 है या आपका जो भी डिज़ायर्ड स्कोर है वो अपना लेके आ सकें। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम सारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू।